Now, this initiative, GSTS, till yet has provided a viable platform to 145 students from almost 40 different colleges, and the research presentations have been critically accessed by 145 guest of honors from almost 60 to 70 colleges across the India. And this all became possible because of the determined visions and the aspirations of Dr. Manish Karnwar, who is the founder and advisor of GSTS, along with the precise execution of the plans by the moderators, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Saurabh Singh, Mr. Ajay Gupta, Ms. Manvi Saraswat, Ms. Samriddhi Kanpal, Mr. Manthan, and Mr. Shailendra Rathod, me myself, have brought about a harbinger of academic excellence. And also, we are very happy and we are very thankful to each one of you because we are soon going to hit 150 successful talk sessions of Graduate Scholars Talk Series. Now, it's time to invite today's guest of honor to inform and enlighten our speaker as well as our team. And for this, I would like to welcome Dr. Rakesh Kumar Rajak, sir. Sir, you're most welcome to this initiative, and thank you so much for that you have joined us today. Now, before asking you to start this event with some of your initial remarks, I would like to tell everybody about today's guest of honor. Dr. Rakesh Kumar Rajak sir is an assistant professor at Shamlal College Evening, University of Delhi in the Department of History. He holds a PhD in African Studies from the University of Delhi, focusing on the comparative study of Nelson Mandela and Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Rajak has also taught at Shyama Prasad Mukherjee College and College of Vocational Studies. He has published several articles on social reform, Gandhi's ideologies and tribal communities. साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे पेपर्स को भी प्रेजेंट किया है at various seminars showcasing a robust academic and research profile. So now, sir, I would like to request you to give us your permission to start the event with some of your initial remarks. सबसे पहले मैं जीएसटीएस परिवार को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जीएसटीएस एक बेस्ड सोसाइटी है और इसमें जो साक्ष का जो हिस्ट्री सोसाइटी है उसमें एक अलग तरीके से जो है एक अलग प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रदान करती है। और इसमें जो आज का जो टॉपिक है सोसाइटी कैटलिस्ट फॉर अचीविंग गोल्स, मतलब किस तरीके से जो सोसाइटी है अलग अलग तरीके से जो कॉलेजेज में जो सोसाइटियां जो चलती हैं किस तरीके से कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक का काम करती है हमारे गोल्स को प्रदान करने में। और इसमें मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं हार्दिक जी को भी, क्योंकि हमारे जीएसटीएस परिवार में विद्यार्थी दिल से जुड़े चले आते हैं। क्योंकि यहाँ हार्दिक बधाई आपको, बधाई जी, बधाई, क्योंकि फूले नहीं मैं पलके बिछाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपके लिए एक और कहना चाहूंगा कि दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सोसाइटी के भले की अरदास हो। चलिए शुरुआत करें हार्दिक जी। Thank you so much, sir, for मनीष सर के लिए भी सबसे पहले मैं धन्यवाद मनीष सर को भी देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अपने दो शब्द रखने के लिए एक बड़ी प्लेटफॉर्म दी। और धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मॉडरेटर, गाइड और दार्शनिक मनीष सर का, जो हमारे इस जीएसटीएस परिवार के अस्तित्व के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने हम सभी जीएसटीएस परिवार को सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया है और साथ ही साथ इन्होंने हमारे चारित्रिक निर्माण और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया है और एक अच्छा नागरिक बनाने में हमें मदद की है। तो सर के लिए मैं कहना जरूर चाहूंगा कि विद्यार्थी जो है तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। बदलाव की शुरुआत आपने किया तो सही, अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा। अच्छे की शुरुआत आपने किया तो सही। Thank you so much, sir, for all your beautiful words to initiate this session with such an energy. And we'll surely come back to you once our speaker will complete his presentation. So now it's time to invite our speaker. But before that,
Methodological individuals have raised metaphysical and ontological concerns about the idea that there are such things as societies, and other philosophers have found the concept of a society to be unacceptably vague. For these reasons, it is worthwhile to devote this session to an attempt to explain the concept of need of society for achieving goals. So without any further delay, let's invite our today's speaker, Mr. Hardik. He is a scholar at Campus Law Center, University of Delhi, and today he will be speaking on the topic Society Catalyst for Achieving Goals. So, Mr. Hardik, the stage is all yours to explain why does society matters. बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार राजाक जी, डॉक्टर मनीष करनवार जी, जीएसटीएस के कोर टीम एवं सदस्य हैं, आप सभी का धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। मेरा नाम हार्दिक है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई राजधानी महाविद्यालय से की है और साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मैं अभी इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैंने अपना काफी समय सोसाइटी की ओर दिया है और मुझे लगता है कि सोसाइटी की वजह से जो मेरे अंदर विकास हुआ है उसे आप सभी के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय की चकाचौंध के अंदर अपना नाम कमाता है और उसके बाद फिर कई सारी जिम्मेदारियों पर, कई सारे पदों पर अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सेवाओं को देता है, तो ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से जो कॉलेज की सोसाइटी है या फिर ओवरऑल सोसाइटी है, उसने किसी का बौद्धिक विकास किया है या किसी का चारित्रिक विकास भी किया है। और इसी वजह से मेरा आज का जो विषय है वो है सोसाइटी कैटलिस्ट फॉर अचीविंग गोल्स। अगर गेस्ट ऑफ ऑनर की आज्ञा हो तो मैं अपने टॉक को शुरू कर सकता हूँ। शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यतः आज मैं बात इस पर भी करूंगा कि सोसाइटी का सही मतलब क्या है। उसके बाद हम इस चीज के ऊपर भी आएंगे कि किस प्रकार से जो सोसाइटी है उसके इंडिविजुअल के ऊपर किस प्रकार के इम्पैक्ट रहते हैं। फिर मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि किस प्रकार से सोसाइटी के साथ रह करके आप सभी लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी इंस्पिरेशनल सोसाइटीज हैं जिन्होंने काम करके, जिन्होंने अपने अवसरों को यहाँ पर प्रेषित करके किस प्रकार से समाज के अंदर एक नए बदलावों को लेकर के आए हैं। और अंत में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सोसाइटी शुरू कर सकते हैं, इसमें मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे नेगेटिव्स भी हैं सोसाइटी के अंदर जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। एरिस्टोटल कहते हैं ऑल पर्सन ऑट टू एंडेवर टू फॉलो व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि सभी व्यक्तियों को जो सही है उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि जो स्थापित है उसका। इसी कारण में समझने की जरूरत है कि सोसाइटी का असली मतलब क्या है। सोसाइटी अपने आप में ही सांस्कृतिक और जो जीवन शैली है उसको मिल करके जो हम लोग रहने की बातचीत करते हैं उसको बोला जाता है। अब वह किसी भी प्रकार की सोसाइटी हो सकती है। अगर हम बात करें परिवार की, मित्रगण की, संस्थान की या फिर आंदोलन की, सभी समाज का एक प्रारूप है। और अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो सबसे पुरातात्विक जो समाज रहा है या फिर सोसाइटी रही है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, जिसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शेयर्ड कल्चर के रूप में हमने मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड भी देखा है। और उसके बाद फिर जब हम लोग रेनेसा के दौर पर आते हैं या फिर वैदिक दौर पर आते हैं तो वही सभा जो है, वही समाज जो है मिलकर के एक राजन का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। और वो राजन का कॉन्सेप्ट फिर बाद में गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ताकि लोगों को गवर्न किया जाए और आपस में एक शेयर्ड कल्चर जो है आपस में शेयर किया जाए। फिर जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हैं या फिर मेडिवल टाइम्स के अंदर आते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, रेनेसा के थ्रू कौन सी सोसाइटीज के कल्चर है। जैसे कि रेनेसा के अंदर लंदन स्कूल ऑफ रिसर्च आता है। फिर बाद में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भी देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म आ रहा है, सोशलिज्म आ रहा है, या फिर हम लोग बात करें कम्युनिज्म आ रहा है। और 20वीं सदी के अंदर वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देखते हैं कि नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, सोशल मूवमेंट, इन सभी चीजों ने सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है। तो इतिहास में सोसाइटी जो है वो सबसे पुरानी दौर से लेकर के अभी तक सोसाइटी हमेशा से हमारे साथ में रही है और इसका इम्पैक्ट हमारे प्रत्येक नई घटनाओं के ऊपर, सोसाइटी के अंदर जो भी घटनाएं हुई है उन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है।
अब ये समझने की जरूरत है कि सोसाइटी का इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सोसाइटी के ही प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम रहते हैं। उदाहरण के लिए माना जाए तो अगर हम बायोलॉजी के अंदर जाते हैं तो हम लोग दो तरीके के ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है इनहेरिट ट्रेट और दूसरा होता है एक्सहेरिट ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो हम लोग अपने माता पिता या फिर अपने जो इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना जिनके साथ अपना हम डीएनए शेयर कर रहे होते हैं, उनसे पाते हैं। लेकिन जो एक्सहेरिट ट्रेट है, वो एक्सहेरिट ट्रेट अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रेट जो है हम लोग वो सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी से गेन करते हैं। और जब हम सोसाइटी से वो ट्रेट्स को गेन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे मेंटल ग्रोथ के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी करता है कि हम सोसाइटी के अंदर कौन सी नई चीज हम देने वाले हैं, और वो सोसाइटी के अंदर जो नई चीज हम देने वाले हैं वो किस प्रकार से दूसरे लोगों को किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगी। अब यही चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि आपकी पर्सनालिटी ही है जो आपको एनालिसिस की तरफ लेके जाएगी दूसरे लोगों के लिए, कि वो व्यक्ति कितना बेहतर व्यक्ति मेरे लिए है या फिर वो सोसाइटी कितनी बेहतर मेरे लिए है। उदाहरण के लिए माना जाए तो अगर हम लोग फॉरेन एजुकेशन के अंदर भी कोशिश करते हैं कि हमारा वहां पर एडमिशन हो जाए, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है इस चीज की कि जो व्यक्ति जो दूसरे देश से माइग्रेट करके हमारे देश में आने वाला है वो कितनी ज्यादा बेहतर सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए वहां पर जो है बायो नोट्स और पर्सनल नोट्स में मांगा जाता है कि आप कितने ज्यादा डायनेमिक रहे हैं सोसाइटी के अंदर, या फिर कितने ज्यादा आपने इनिशिएटिव ले हैं सोसाइटी के लिए। इसलिए सोसाइटी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे पास एक बहुत अच्छी पावर है कि हम अपनी पर्सनालिटी को अपने आप ही शेप कर सकते हैं, ताकि वो भी सोसाइटीज के थ्रू। और वो किस प्रकार से आएगा? वो आएगा सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी कमिटमेंट के थ्रू, और अपने वर्जन्स को खुद ही बेहतर बनाने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो दिन ब दिन हम ट्रैवल करने के समय अपनी सिविक सेंस रखते हो, या फिर हम लोग अगर कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो किस प्रकार से स्टूडेंट और टीचर के रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हो, या फिर अगर हम लोग बात करें जब हम सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सी अच्छी आदत या फिर कौन सी बुरी आदत को हम अपने सोसाइटीज के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी है वही हमारी पर्सनैलिटी को बाद में एनालाइज करेगी, और जब वो सोसाइटी हमारे बीच में आएगी या फिर हम सोसाइटी के बीच अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर एक जो हमारा एक बेटर सेल्फ है वो अपने आप ही सामने आने लगेगा। अब कुछ इंस्पिरेशनल सोसाइटीज है उनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि रॉबिनहुड आर्मी है। 2013 के आसपास रॉबिनहुड आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो भुखमरी के वजह से तो कम मर रहे हैं, बल्कि जो खाना है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हम लोग जो का खाना है वो जाके गरीबों को बांटेंगे, या फिर ऐसी जगह पर बांटेंगे जहां पर उसकी सच में नीड हो। इस समय वो 10 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, लगभग 2,18,912 वॉलंटियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं लगभग 401 सिटीज के अंदर, और उन्होंने लगभग 118.46 मिलियन लोगों को अभी तक खाना खिला चुके हैं हम। उसी तरीके से दूसरा जो है वो रोटी बैंक का कॉन्सेप्ट है। रोटी बैंक 2015 में शुरू होता है, जहां पर वो लोगों को देखते हैं कि जो खाना का वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और उन्होंने बोला था कि आप एक काम कीजिए, जैसे कि मान के चलिए अगर मैं कहीं पर समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ थ्रू पैसे, तो उन्होंने बोला नहीं आप पैसे मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप 2 रोटी 3 रोटी 40 रोटी 50 रोटी हमारे यहाँ पर बैंक में जमा कर दीजिए। हम उस रोटी को जाकर के ऐसे लोगों को वो देकर के आएंगे जिनको बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। तीसरी सोसाइटी की बात की जाए तो रित्वा फाउंडेशन है। रित्वा फाउंडेशन जो है उसने ये चीज देखी कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं खासकर ग्रामीण भारत के अंदर, उनके पास मेंस्ट्रुएशन के लिए जो प्रोडक्ट्स या फिर उनकी अवेयरनेस है वो यहाँ पर नहीं है, या फिर सेक्सुअल एजुकेशन की जो अर्बन या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है उनके अंदर उस चीज की अवेयरनेस नहीं है, विलेजेस के अंदर उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम लोग इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जब हम लोग इसके बारे में शेयर करेंगे तो उसके बाद फिर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिलेंगे, और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी और शायद समाप्ति की ओर भी जाने लगेगी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि महिलाओं के जो मेंस्ट्रुएशन है उसके बारे में सबसे कम रिसर्च मेडिकल साइंसेस के अंदर होती है। तो रित्वा जैसी फाउंडेशन जो है वो आपको मोटिवेट करती है कि इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, और जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो सच में हमें कोई कुछ बेटर इनिशिएटिव्स या फिर बेटर ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के, मेंस्ट्रुअल कप्स के, या बाकी सारी चीजों के, जो हमें पता है कि अभी के दौर पर तो सेफ है, लेकिन क्या वो बाद में भी सेफ रहेंगे।
ठीक इसी प्रकार से इनैक्टस भी एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है लोगों को एंटरप्रेन्योरियल एक्शन के बारे में बताने के लिए थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हम कैपिटलिज्म के दौर के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है केवल अपने प्रॉफिट्स की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर इनैक्टस उन लोगों को अलग से स्टैंड करवाने की कोशिश करता है जो लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा किस्सा है इसके बारे में कि 2019 के आसपास मैं एक दिवाली मेले के अंदर गया था और वहां पर मैंने देखा था कि इनैक्टस के बच्चे बैम्बू का टूथब्रश बेच रहे थे। अब वहां पर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ भी देखना चाहिए जो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है और हम लोग देख सकते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार से ये आर्ट ऑफ दिव्यांग को, आर्ट ऑफ जुवेनाइल को भी बेचते हैं और उससे जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो बाद में जाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी प्रकार से एक और इनिशिएटिव है ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज, जो लोगों को जो बच्चों को एक मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो प्रत्येक हफ्ते अपनी रिसर्च के बारे में या फिर अपने मन पसंद के टॉपिक के बारे में बात करें। 2021 में इसकी स्थापना होती है और वो लगभग 140 से ज्यादा विद्यार्थियों को और 140 से ज्यादा टॉक्स को अभी तक ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, जो एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। ऐसे बच्चों को प्रदान करता है जो कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं या फिर जिनको स्टेज फियर है। ये चीज ऑनलाइन कोविड के दौर पर शुरू हुई थी, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, जिसको डीडी न्यूज ने भी कवर किया है। अब अगर हम कल्चर की बात करते हैं सोसाइटीज के बारे में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोसाइटी कल्चर सबसे ज्यादा विख्यात है इनमें से। यूनिवर्सिटी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू एडमिशंस लेकर के इनिशिएटिव को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, जो बहुत अच्छी और अच्छी स्कीम है। यहाँ पर इन लोगों को बोला जाता है कि आपको कम से कम 1% जो सीट है इनटेक कैपेसिटी जो कॉलेज की है, उसमें से कम 1% ईसीए के लिए और स्पोर्ट्स के लिए मैंडेटरीली आपको इसके अंदर इसको फ्रीज कर देना है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेंगे। और ये 5% की सीलिंग तक के लिए आता है, जिसके अंदर लगभग 12 से ज्यादा जो डिफरेंट डिसिप्लिन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, वहां पर आपको एडमिशंस मिला जाता है। इसके बारे में मैं इसलिए बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू एडमिशन पाया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी डिबेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8 मिला था 2019 के अंदर। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, क्विज, डिविनिटी, एनसीसी, एनएसएस, योगा। डिविनिटी वहां पर जहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज जैसे कि एसडीटीपी खालसा, एसडीएनडी खालसा, माता सुंदरी कॉलेज या फिर सेंट स्टीफन और जेजी सेंट मेरी कॉलेज, जहाँ पर डिविनिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब सोसाइटी जो है वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद अपने आप इनिशिएटिव्स ले रही है कि हम किस तरीके से ज्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ मोटिवेट करें, ताकि वो वहां पर ना सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ की तरफ देखें, बल्कि एकेडमिक्स के साथ साथ सोसाइटल ग्रोथ जो कि आपके सॉफ्ट स्किल है उसको डेवलप करवाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि केवल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोमिनेंट है। नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा सोसाइटीज के अंदर, काफी ज्यादा कॉलेजेस के अंदर भी है। एग्जांपल के लिए आईआईटी बॉम्बे मूड इंडिगो करके अपना बहुत बड़ा फेस्ट करवाता है, आईआईटी मद्रास सारंग करके करवाता है, बिट्स पिलानी में ओएसिस नाम का फेस्ट होता है, तो अंतराग्नि नाम से आईआईटी कानपुर में भी फेस्ट करवाया जाता है, और साथ ही साथ सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में भी मल्हार करके फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जहां पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर सॉफ्ट स्किल्स है उनको लोगों के बीच में प्रेजेंट करें। हालांकि सोसाइटी का जो कल्चर है वो हमारे देश में हर जगह पर फैला हुआ है, लेकिन इसका एक्सपोजर जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो केवल कुछ ही लिमिटेड सिटीज के अंदर ही है। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो आप यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस के उदाहरण भी देख रहे हैं वो सभी लोग बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर अगर बात की जाए रांची यूनिवर्सिटी, तो वहां पर इन सब चीजों का एक्सपोजर इतना ज्यादा कम है कि हम लोग, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये जो सोसाइटी का कल्चर है वो ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी बल्कि रीजनल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब हम डिजिटल दौर में आ चुके हैं, सॉफ्ट स्किल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाती है। अब इस बारे में जानने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। कॉलेज सोसाइटीज के अंदर जो है, अगर सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल जानने की जरूरत हो जाती है कि क्या हमारे कॉलेज में उस प्रकार की सोसाइटी है।
अगर वो हमारे पास सोसाइटी है तो उसके बारे में हमें रजिस्ट्रेशन, उसका ओरिएंटेशन अटेंड करके उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करें कि वहां पर सिलेक्ट हो जाए। अगर मान के चलिए वहां पर वैसी सोसाइटी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए कुछ सोसाइटी कॉलेजेस के अंदर मैंने देखा है कि यूपीएससी विंग भी है, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी के अंदर मास मेंटालिटी की खोज में रहते हैं, जहां पर हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से जो बच्चे हैं हम उनको गैदर करें और साथ में उनके साथ में ग्रोथ करें, यानी कि कंबाइन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो हम वहां पर लेकर के आते हैं। तो अगर वहां पर कोई सोसाइटी नहीं है तो हम अपने कॉलेजेस के जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, या फिर कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, या फिर सीनियर्स हैं, या प्रिंसिपल हैं, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, उनके थ्रू मिलकर के एक नई सोसाइटी का आइडिया जो है कॉलेज के अंदर पिच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी विंग है, या फिर यूथ डेवलपमेंट विंग है, जैसे कि मेरे कॉलेज में हुआ करता था यूथ डेवलपमेंट विंग, जो कि सोशल वेलफेयर यूथ डेवलपमेंट की बात करता था। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप वहां पर ला सकते हैं। अगर वैसा कॉन्सेप्ट जरूर वहां पर मौजूद है तो बिल्कुल उस चीज को वहां पर उसके अंदर पार्ट बनिए, उसका ओरिएंटेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि ओरिएंटेशन आपको बताएगी कि किस प्रकार से सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो होती है। उसके ऑडिशंस के अंदर जाइए, कोशिश कीजिए कि अपने आप को वो, आप वहां पर अपने अपनी जो उत्कृष्ट कला है, जो आप किस प्रकार से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कॉलेज सोसाइटी को, वहां पर आप दिखाइए ताकि आप वहां पर सिलेक्ट हो जाए। एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि आप वहां पर सॉफ्ट स्किल्स जो है वहां पर वो सीखने का आपको बहुत ज्यादा मौका मिल जाएगा। और वो किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि आप जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज के अंदर वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और वो छोटी छोटी एक्टिविटीज किस प्रकार की होगी, मान लीजिए कि कॉलेज की जो सोसाइटी है वो कोई इवेंट करवाने वाली है, तो उसका पोस्टर बनाना है। तो वो पोस्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास फोटोशॉप जैसी कॉन्सेप्ट तो अभी तक हम सीख नहीं पा रहे क्योंकि हम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, लेकिन अगर सीख भी लेते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीख पा रहे तो हम क्या करें, उस केस में कैनवा जैसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग जो कॉन्स्टेंटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी वहां पर, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का महत्व जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होगा जब आप पेपर प्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर पेपर लिख रहे होंगे। साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग आपको सॉफ्ट स्किल किस प्रकार से हेल्प करेगी, वो वहां पर भी हेल्प करेगी जब आप एग्जाम पेपर लिखने जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर के अंदर जो आपका कंटेंट है उसके तो नंबर्स होते ही हैं, साथ ही आपके प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं, वो चीज आपको कंटेंट राइटिंग के थ्रू मिलेगी। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती है, एग्जाम्पल के लिए लॉजिस्टिक्स देखना, इवेंट मैनेजमेंट करना, फोटोग्राफी करना, ये सारी की सारी चीजें आप सोसाइटी की एक्टिविटीज के थ्रू ही सीख जाएंगे। और जब आप कॉलेज के बाहर निकलेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, क्योंकि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आए थे जो केवल एकेडमिक्स ही जानता था। हमारे स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम स्कूल्स के अंदर केवल एकेडमिक एक्सेलेंस की ओर देखते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सेलेंस की ओर केवल कुछ कॉलेजेस या फिर कुछ ही स्कूल्स देखते हैं। तो उस वहां पर जो सोसाइटी है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है एक स्किल को सीखने के लिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 2.5 साल के लिए उसको कंटिन्यू कीजिए, सोसाइटी के अंदर रहिए। अगर आप 2.5 साल भी नहीं दे सकते लेकिन कम से कम वहां पर कंट्रीब्यूट कीजिए। कंट्रीब्यूट करके वहां पर अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, एग्जाम्पल के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कन्वीनर, को कन्वीनर अगर आपको वहां पर बना दिया जाता है, तो वहां पर आप ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, वहां पर तालमेल कैसे बिठाया जाता है, कॉलेज के अंदर जो फंड्स होते हैं उसको किस प्रकार से वहां पर लगाया जाता है, किस प्रकार से जो ऑडिट्स है वो वहां पर होते हैं, किस प्रकार से जो चीजें हैं वहां पर करवाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा होती है, कौन कौन से केओस है जो वहां पर बचाए जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग कॉलेज सोसाइटीज के अंदर, अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे हम लोग उस चीज को सीखेंगे। और इन सब चीजों का एंड रिजल्ट ये है कि जब आप वहां पर अपना जाकर के बायो नोट बनाएंगे ना, जब आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना होगा या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा जहां पर वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जान रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पर आपकी ग्रुप डिस्कशन तो होती है लेकिन बाद में इंटरव्यूज भी होते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वहां पर वो आपको वहां पर एनालाइज करेंगे। एग्जांपल के लिए मान के चलिए अगर यहाँ से आप बीबीए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, तो क्या उस बच्चे के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहां तो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, तो क्या उस बच्चे के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि वहां पर वो आईआईएम के अंदर अपने जो अपना इंटरव्यू है उसके अंदर वो अलग से स्टैंड आउट करे? नहीं, वहां पर आप क्योंकि एकेडमिक्स में रहते हुए जॉब नहीं कर सकते, आप रेगुलर कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको जॉब करने की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन जब आप कॉलेज सोसाइटीज के अंदर रहेंगे तो कॉलेज सोसाइटीज के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप जाकर के अपने आप को अलग से स्टैंड आउट करवा सकते हैं थ्रू योर कंटिन्यूअस ग्रोथ जो आपने सोसाइटीज के अंदर पाई है, कंटेंट राइटिंग के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। आप वहां पे जाएंगे, इंटरव्यू में बोलेंगे जैसा आई नो, मुझे आती है किस प्रकार से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, मुझे पता है किस प्रकार से ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। वहां पर आप स्टैंड आउट करेंगे क्योंकि आप
एक आपका जो कंपटीशन जो है ना वो रॉ स्टूडेंट नहीं है, आपका कंपटीशन वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अच्छी चीजों में एंगेज्ड है। तो वहां पर अगर आपको स्टैंड आउट करवाना है तो वहां पर कॉलेज सोसाइटीज बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो एकेडमिक्स के साथ साथ कॉलेज सोसाइटीज को लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह होती है कि हमेशा कम से कम एक सोसाइटी तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि आप किस प्रकार से अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। आप आपको अपनी खुद की सोसाइटी किस प्रकार से शुरू करिए। मान के चलिए आपके कॉलेजेस में आप अपनी सोसाइटी शुरू नहीं करवा सकते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप एक चीज देखिए कि आपके सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है समाज के अंदर। आप रोज डेली एक्टिविटीज में देखते होंगे, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो आप बस में रोज ट्रैवल करते होंगे, तो वहां पे सिविक सेंस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो सिविक सेंस के लिए आप उस सिविक सेंस को ग्रो करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई ना कोई सोसाइटी का निर्माण करेंगे। आप अपने जो आइडियाज हैं उनको आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, कोई सी भी प्रॉब्लम जो आपके बीच में है, एग्जांपल के लिए जैसे हंगर की प्रॉब्लम थी, उसके लिए रॉबिनहुड आर्मी आ गई, रोटी बैंक आ गया, या फिर मेंस्ट्रुएशन के कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए ऋत्व आ गया, या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस हो चुकी थी। तो कोई भी प्रॉब्लम इस प्रकार की आपको पहले खोजने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाती है तो उसके बारे में आप अपने जो आइडियाज है उनको स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। मिनिमम 5 हो, 7 हो, 3 लोग भी हो, आप मिलकर के एक सोसाइटी का निर्माण करिए। वहां पर आप अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। आइडियाज को शेयर करने के बाद उसके इनिशिएटिव्स लीजिए, किस प्रकार से आप लॉजिस्टिक्स को वहां पर देखेंगे, सारी चीजें किस प्रकार से काम करेंगी, और उसके बाद फिर वहां से आप अपनी सोसाइटीज को ग्रो करवाइए। आप देखिए कि आप कितना ज्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर लेकर आ सकते हैं, समाज के अंदर आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और वो बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात करें जो 1860 के अंदर पारित किया गया था, तो उसको अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो बहुत बड़ा एक्ट है। लेकिन उसको अगर हम 3 स्टेप के अंदर प्रिसाइजली बात की जाए तो पहला स्टेप ये बन जाता है, अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं सोसाइटी को, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट फंड्स हैं, एग्जांपल के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं, एनजीओज बनाना चाहते हैं, तो उस केस में सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आप गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स या फिर प्राइवेट एंटिटीज के थ्रू फंड्स, फॉर्म 80G होता है जिसके थ्रू काफी सारे लोग टैक्स रिबेट भी लेते हैं, तो वो सारी चीजें आप वहां पर लोगों को अवेलेबल करवा सकते हैं टू जनरेट मोर फंड्स। जब आप वो फंड जनरेट करेंगे तो आप ऑब्वियसली उस चीज को उस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएंगे, जो आपने आइडिया वहां पर कॉन्सेप्ट जो पहले बिल्ड किया था उसके अंदर आप इजिली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको MOA को और रूल्स जो है पूरी की पूरी उस चीज को हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स, इन सब चीजों को प्रिपेयर कीजिए और देखिए वो किस प्रकार से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एम्बिट में अंदर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है उस वहां पर आपको वहां पे जाकर के फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को भरना है, MOAs को, रूल्स को और बाकी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या फिर प्रूफ ऑफ ऑफिस, जहां पर भी वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें आप वहां पर देंगे, एस्टैब्लिश उसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जमा कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़े दिनों के लिए अपना जो भी आप काम कर रहे थे सोसाइटीज के अंदर उसको कंटिन्यू रखना है। जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रार का वहां पर उनको लगता है कि हाँ उसको अप्रूव कर देना चाहिए, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी सोसाइटी कंप्लीट रजिस्टर हो जाती है। फिर आप कोई भी इनिशिएटिव शुरू करेंगे वो काफी इजीली वहां पे सोसाइटी के अंदर आ जाएगा और वो आप उसके लिए बहुत स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे। फिर आप फॉर्म 80G के थ्रू लोगों को टैक्स रिबेट देने में भी हेल्प करवाएंगे, फिर आप वहां पर भी हेल्प करवाएंगे कि आपको फंड जनरेट करना है किस प्रकार से थ्रू डिफरेंट मोड्स, तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। अब मेरी क्या जर्नी रही थी इसके अंदर, मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी 12वीं में काफी कम परसेंटेज थी, लाइक 60% से ज्यादा थी लेकिन 70% से कम थी। अब उस केस में मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे कहीं पे भी एडमिशन बहुत जल्दी नहीं मिल रहा था और मेरे पास सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन ही बच रही थी। वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जब मुझे पता लगा तो मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू 15% की रिबेट मिल गई जो नॉर्मल जनरल कट ऑफ थी, और मुझे काफी इजीली BA प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया। और जब BA प्रोग्राम में मेरे पास एडमिशन मुझे मिल गया था तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता था। मैंने वहां पर सबसे पहले एक काम किया,
मैंने सोसाइटीज को ज्वाइन किया। और सोसाइटीज को ज्वाइन करने का मेरा इकलौता जो मकसद था केवल यही था, मैं जानना चाहता था कि अलग अलग सोसाइटीज किस तरीके से काम करती थी। मैं पोइट्री सोसाइटीज में भी गया, मैं डिबेटिंग सोसाइटी में ऑब्वियसली बाय कंपल्शन, क्योंकि मेरे पास इसी एडमिशन हो चुका था तो डिबेट्स के थ्रू मेरे को वहां पर रहना ही रहना था, तो मैं डिबेटिंग सोसाइटी में भी गया। मैंने वुमेन डेवलपमेंट के अंदर सोसाइटीज के अंदर भी काम किया, वुमेन डेवलपमेंट विंग जो होता है, वुमेन डेवलपमेंट सेल होता है, वहां पर भी काम किया। वहां से मुझे काफी सारी चीजें पता लगी। हास्यास्पद बात होगी कि मुझे मेंस्ट्रुएशन के बारे में 12वीं तक नहीं पता था, और मुझे कॉलेज में आकर के इसके बारे में पता लगता है थ्रू वुमेन डेवलपमेंट सेल कि हाँ ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए, तो सोचने की बात है कि अगर मुझे नहीं पता तो ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो वहां पर सोसाइटीज काफी ज्यादा हेल्प कर देती है। इसके अलावा बहुत सारे यूथ क्लब्स के अंदर भी मैं गया, और वहां से ही मुझे मेरी करियर की डायरेक्शन मिली कि मुझे आगे चल करके लॉ परस्यू करना है। तो सोसाइटीज ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी, जिसके बाद मुझे काफी सारी जिम्मेदारियां भी मिली। मैं अपने कॉलेज के IQAC का इकलौता स्टूडेंट मेंबर था जो IQAC की मेंबर्स लिस्ट में था। इसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से कल्चरल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जहां पर मैं वेस्ट जोन जो था वहां पर जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे कल्चर, वहाँ पे मेरी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी, मैं किस प्रकार से वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो करवानी है। इसके अलावा मैं डिबेटिंग सोसाइटीज के अंदर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर रहा, मैं बच्चों को सिखाता था कि डिबेट्स के अंदर कौन कौन सी डिबेट किस प्रकार से होती है। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे रहा, मैं कॉलेज के अंदर सेक्रेटरी के पद पे रहा कॉलेज की पोइट्री सोसाइटीज के अंदर। फिर बाद में मैंने और बाकी सारे भी काम किए। मैंने एक अलग से सोसाइटी के अंदर भी काम किया जो जिसका नाम मैथिली आकांक्षा मंच है, जो माइग्रेंट स्टूडेंट्स है उनके लिए काम करती है कि किस प्रकार से जो बच्चा जो 70-80 के दशकों में अपने बिहार से माइग्रेट कर चुका, जिसको मैथिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उदाहरण के लिए मैं मेरी दिल्ली में तीसरी जनरेशन है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मातृभाषा मैथिली है, मुझे पता ही नहीं था। मैं बोलता था कि मेरी जो मातृभाषा है वो बंगाली का एक डायलेक्ट है, मुझे पता ही नहीं था कि उसका नाम मैथिली है। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे वहां से पता लगा। अब मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि मुझे मैथिली लिखना भी आता है और मैं बोल भी बहुत अच्छी सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सोसाइटी के थ्रू ही मुझे मिली है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सोसाइटीज की तरफ जाना चाहिए एकेडमिक्स को साथ में रखते हुए। ये मेरे CV का एक छोटा सा नमूना है, अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ना सेकंड पेज पे यहाँ पर एक हाइपर लिंक डाल दी थी कि अगर कोई मेरी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट देखना चाहता है तो मेरे पास इतनी अचीवमेंट थी, क्योंकि CV का जो लिमिट होता है वो 2 पेज का होता है, और जब आप हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं उसके बाद मेरी ये 2 पेज की अचीवमेंट शुरू हो जाती है। और भगवान की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, और मैं इसी डायरेक्शन में मेहनत करता रहा, तो शायद ये 2 से 10 पेज भी हो सकती है इन नियर फ्यूचर। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आई कहाँ से? यहाँ पर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक अलग से मैंने कॉलम बनाया था, जहाँ पर मैथिली आकांक्षा मंच, राजधानी कॉलेज, डिबेटिंग सोसाइटी, युवा द सोशल वेलफेयर एंड यूथ डेवलपमेंट विंग, UPSC विंग, KV के अंदर मैंने क्या क्या किया, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाली। और अब मैं इस CV को अगर लेकर के किसी भी कॉलेज के अंदर जाऊंगा जहां पर मेरी इंटरव्यू की काफी ज्यादा वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली मैं अलग से बच्चों के साथ में स्टैंड आउट करूंगा। ये सारी की सारी चीजें मुझे मिली कहाँ से है? ये सारी की सारी चीजें मुझे थ्रू सोसाइटी मिली है, क्योंकि सोसाइटी के थ्रू ही मैंने काफी सारी चीजें गेन करी हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर जाएं, कम से कम एक सोसाइटी के अंदर तो जरूर जाएं, चाहे वो डिपार्टमेंट की सोसाइटी क्यों ना हो। एग्जांपल के लिए साक्ष्य हिस्ट्री डिपार्टमेंट है श्यामलाल कॉलेज का, वो आए दिन कोई ना कोई वॉक करवाते होंगे किसी न किसी मॉन्यूमेंट की, जहां पर वो जानते होंगे किस प्रकार से इसकी आर्कियोलॉजी रही होगी, यहाँ पर आर्किटेक्चर किस प्रकार का रहा होगा। तो वो भी तो हमारे एकेडमिक एक्सीलेंस को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। वो सारी की सारी चीजें भी तो वहां पर मिल रही है। तो अगर आप डिपार्टमेंट सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मेहनत कम लगती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप कल्चरल सोसाइटीज के थ्रू अगर कंपैरेटिवली डिपार्टमेंट सोसाइटीज को देखते हैं तो वहां पर कम मेहनत लगती है। तो ऐसी सारी चीजें में भी आप इनिशिएटिव्स के अंदर भी जा सकते हैं। सोसाइटी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस बारे में भी जानने की जरूरत है कि कौन कौन से नेगेटिव्स हैं जिसकी तरफ हमको देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि सोसाइटी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहती है, कई बार आपका वो पर्सनल टाइम भी आपको डिवोट करना पड़ जाता है उसके अंदर। एग्जांपल के लिए मान के चलिए वहां पर आपको कोई बैकअप नहीं है, और बैकअप के टाइम क्या आपको ही काम करना पड़ रहा है, तो रात को 12 बजे भी शायद आपको काम करना पड़ सकता है। ऐसा होता है, लेकिन जनरली ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है, लोग 10 बजे के बाद फोन नहीं करते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती है। लेकिन वो सारी एकेडमिक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैनेज की जा सकती है। मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 16 सोसाइटीज के अंदर था, और सेकंड ईयर में आते आते मैंने 8 सोसाइटीज कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कई सारी सोसाइटीज के अंदर केवल उस चीज को गेन करने गया हूँ कि किस प्रकार से सोसाइटी काम करने गई है, काम करती है। तो मैंने अपने आप अपनी प्रायोरिटीज को वहां पे जैसे जैसे मेरी प्रायोरिटीज बढ़ती हैं ऐसे ऐसे मैंने अपने सोसाइटीज के नंबर को भी कम कर दिया। तो हाँ, ये बात सच है बिल्कुल, सोसाइटीज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है।
सबसे बड़ा सोसाइटीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज हम टीयर 1 सिटी में बैठ करके या मेट्रो सिटी में बैठ करके इस बारे में बात तो कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छी है, इसके बारे में काम करना चाहिए, इनिशिएटिव्स के थ्रू हमको काम करने की जरूरत है, लेकिन इसका एक्सपोजर रीजनल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में लगभग बिल्कुल न के बराबर है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर मॉडल यूनाइटेड नेशन के बारे में छोड़ो, डिबेट के बारे में भी लोगों को नहीं पता कि डिबेट नाम का कॉन्सेप्ट भी वहां पर कुछ इवॉल्व कर रहा है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन के थ्रू आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसका एक्सपोजर काफी ज्यादा कम है। अगर वहां पर कोई बच्चा है, आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई दोस्त है जिसको आपको पता हो कि भाई हाँ वहां पर वो सोसाइटी के अंदर आप इसी ऐसे इनिशिएटिव्स वहां पर आपके कॉलेज में लिए जा रहे हैं, तो आपको जरूर वहां पर शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे, उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तब तक आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव जो आप गेन करने आए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान के चले तो मुझे त्रिपुरा के कल्चर के बारे में नहीं पता है, मेरे पास त्रिपुरा के कल्चर के बारे में जानने के लिए क्या ही मेथड्स है। मैं या तो यूट्यूब पे सर्च कर लूंगा, या फिर मैं विकिपीडिया पे सर्च कर लूंगा, या फिर कोई त्रिपुरा के बारे में किसी का पर्सपेक्टिव जान लूंगा कि त्रिपुरा कौन सा स्टेट है, वहां पर बंगाली क्यों बोली जा रही है। लेकिन अगर मान के चलिए मुझे त्रिपुरा का कोई वहां का स्टूडेंट मिल जाता है, या त्रिपुरा का कोई बच्चा मिल जाता है इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन और इन अ पोएट्री कॉम्पिटिशन थ्रू सोसाइटीज, तो मुझे त्रिपुरा के बारे में और बेहतर रूप से पता लगेगा, उसकी पॉलिटी के बारे में पता लगेगा और बाकी चीजों के बारे में पता लगेगा। और वो क्यों, वो कहाँ से मिलेगा, वो अलग पर्सपेक्टिव मुझे सोसाइटीज के थ्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटीज के थ्रू आप कनेक्शंस को भी बिल्ड करेंगे, और वो कनेक्शंस आपको यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे कॉलेजेस के अंदर, बल्कि वो सोसाइटी के जो कनेक्शंस है वो आपको सोसाइटी के बाहर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं मैंने जो डिबेटिंग के थ्रू बनाए हैं, लेकिन वो आज मुझे एकेडमिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो यहाँ पर आए भी थे, पद्मनाभ रेड्डी करके। वो वैसे तो इंग्लिश के स्टूडेंट है, लेकिन वो इतिहास के बारे में काफी अच्छा जानते हैं, और वो काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं उसके बारे में। लेकिन उनको वो नॉलेज कहाँ से मिली? वो कहते हैं मुझे लिटरेचर के थ्रू तो नॉलेज मिली ही मिली, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मेरा सर्कल उस प्रकार से बन गया था, तो मैंने सर्कल के थ्रू अपने इतिहास के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान, मतलब मुझे वहां पर ज्ञान मिला। तो मुझे इसलिए लगता है कि सोसाइटीज के बारे में काफी ज्यादा हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटीज के अंदर ये है कि आपस में जब आप सोसाइटी के अंदर आते हैं ना, वो कहने वाली बात होती है कि अगर आप एक किचन में बैठे तो बर्तन आपस में तो बजेंगे ही बजेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों के बीच में एक नए नए पर्सपेक्टिव्स की लड़ाई होती है कि मेरा पर्सपेक्टिव ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, फिर मेरा पर्सपेक्टिव ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में आपस में फूट आ जाती है। कई बार वो लड़ने भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोस्ट के लिए लड़ना, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां पर बच्चे अपना एक नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं सोसाइटीज के अंदर कि हम इस चीज का विरोध करेंगे, जो बहुत ज्यादा गलत लगता है मुझे। क्योंकि आप यहाँ पर जब सीखने आए तो वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा टर्शरी के बाद की चीजें हो जाती है। तो वो काफी सारी चीजें, मतलब उस चीज को हम अपनी तरफ से नेगेट कर सकते हैं अगर हमारा सिंपल खाली मतलब ये चीजें हैं कि हमें सिर्फ वहां पर जाकर के अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, तो चीजें वो काफी ज्यादा इजीली हम लोग वहां पर उस चीज को निगेट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चौथी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पर्सनल फ्रीडम को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको आधी रात को टीचर कन्वीनर से बात करने की जरूरत पड़ गई, तो आपको आधी रात को अगर वो फोन करते हैं, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो आपको आधी रात को भी फोन कर उठाना पड़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस चीज को भी देखिए। एक नेगेटिव है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा बाद में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वही टीचर कन्वीनर जब आपका बायो नोट लिखेंगे ना कि यस दिस स्टूडेंट वाज वेरी गुड, उन्होंने बहुत रात को भी फोन उठाए, मेरे बहुत सारी चीजें करी हैं, तो वो चीजें काफी ज्यादा आपको बाद में भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि नेगेटिव से ज्यादा आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा देख सकते हैं। तो नेगेटिव्स तो है, लेकिन पॉजिटिव्स इससे ज्यादा अमाउंट में, तो मुझे लगता है इसलिए आपको सोसाइटीज को ज्वाइन करना चाहिए। कंक्लूजन पे अगर हम आए तो सोसाइटी जो है एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर देती है हमारी पर्सनैलिटीज के लिए, जो मेरा पूरा का पूरा जो डिस्कशन था उसका क्रक्स निकलता है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज देती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर हम एक्टिवली इंगेज करते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के अंदर, डाइवर्स एक्सपीरियंस को देखते हैं, या फिर इनिशिएटिव्स लेते हैं पॉजिटिव चेंज के लिए, तो हम लोग अपने अंदर एक बेटर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी इंप्रूवमेंट, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है वो केवल एक स्टेप मांगती है, और वो ये है कि आप उसकी तरफ जाइए और उसके लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कीजिए, रील्स बनाइए, कुछ भी कीजिए,
वो रील्स भी एक सोसाइटी ही है, दूसू भी अपने आप में एक सोसाइटी ही है। वो इलेक्शन वाली जो चीजें होती है वो एक नेगेटिव इन्फ्लक्स है उस चीज का, नेगेटिव चीज है उसकी। लेकिन स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि वही स्टूडेंट यूनियन आपके मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन तक रखेगी। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये आपको कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसलिए सोसाइटीज की तरफ जाइए, और ये सच में कैटलिस्ट है सोसाइटी में गोल के लिए, आपके लिए। क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ इस चीज के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए। मेरे पास क्या था, मैं कॉलेज के अंदर आया था, एक पतला सा लड़का जिसका 12 किलो वेट कम हो गया था, क्योंकि उसको कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले पीलिया हो चुका था। बहुत ज्यादा परेशान था, एनर्जी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इनिशिएटिव्स के थ्रू, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इनिशिएटिव्स लेकर के अपनी तरफ से काम करने के लिए, मैं काम करूंगा तो जरूर करूंगा। लॉकडाउन के अंदर सभी लोग परेशान थे। जैसे मनीष सर ने जीएसटीएस की स्थापना करके इसको शुरुआत करा, ऐसे मैंने भी द पॉलिटिकल वायर करके अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया। लेकिन वो पॉडकास्ट शुरू करना भी काफी बड़ा चैलेंज था। लेकिन वो चैलेंज किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट हुआ? वो चैलेंज कॉम्प्लीमेंट हुआ तब जब मुझे कंटेंट राइटिंग आ गई थी, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई थी, और मैं सारी की सारी चीजें, जितनी एडिटिंग थी, जितनी भी चीजें थी, सारी खुद करता था पॉडकास्ट की अपनी। और मैंने उसको पब्लिश करवाया। मेरी बाद में 17 कंट्रीज में जाकर के वहां पर ऑडियंस मिली मुझे, 17 कंट्रीज के अंदर मेरे को ऑडियंस मिली। इसके अलावा मुझे $25 पर एपिसोड स्पॉटिफाई की तरफ मिलता था। मुझे जियो सिनेमा से ऑफर आ गया था। बाद में वो चीज ये थी कि बाद में मुझे वहां पर वो जो भी सेटलमेंट थी वो हो गई। जियो सिनेमा से मेरे को ऑफर आ गया था कि आप वहां से स्पॉटिफाई से अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको डिलीट करके हमारे यहाँ पर उसको अपलोड करवा दीजिए। गाना.com पे मेरा पॉडकास्ट गया। लगभग 19 प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा जो पॉडकास्ट है वो लाइव होने लग गया। लेकिन वो सारी की सारी चीजें हुई कैसे? वो सारी की सारी चीजें हुई थ्रू दिस। वो चीजें मुझे सिर्फ सोसाइटीज के थ्रू मिली है और कहीं से नहीं मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन देखिए सोसाइटी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जीएसटीएस का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप सभी लोग अपना कीमती समय लेकर के आए, मुझे सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर राकेश सर का, कि उन्होंने मुझे बहुत पेशेंटली सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी लोगों का। मुझे लगता है कि मैंने शायद आप लोगों को एक बेहतर दिशा देने का काम किया होगा। Thank you so much, Mr. Hardik. And indeed, of course, you really explained it really well. All the factors, all the different perspectives of the societies, and on a crisp way, we could say that society contributes to different perspectives of an individual, because society is a kind of tiny model of the societies we live in. Like if we talk about on a panoramic level, हम बोल सकते हैं कि societies जो है वो tiny models हैं उन societies का जहाँ पर हम रहते हैं. So it was indeed great to listen you. We have some questions, let's take them. So the first question is actually by me, and I just want to ask कि आपने societies की बात की obviously, और एक society जो है वो एक individual के different एक diverse perspectives में contribute करती है, right? But somewhere deep बहुत सारी पावर डायनामिक्स और बहुत सारी हायरार्कीज होती है, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा बताया भी था, ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया था। बट आई रियली वांट टू नो इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल कि ये जो पावर डायनामिक्स है, जो इंक्लूसिविटी और जो डाइवर्स पर्सपेक्टिवनेस है उसको हैंडल करती है, इस चीज को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, या व्हाट आर सम व्यूज और व्हाट आर योर पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस? इस चीज का सबसे बेहतर एग्जांपल हमारे देश का खुद का पार्लियामेंट है। और उस डेमोक्रेसी को मैच्योर रखने के लिए हमें जरूर समझने की आवश्यकता हो जाती है कि जहां पर पक्ष होगा वहां पर विपक्ष भी जरूर होगा। लेकिन वो विपक्ष कितना ज्यादा मैच्योर विपक्ष है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर डायनेमिक्स के अंदर। हाँ, अगर आपको लगता है कि उनकी पॉलिसीज खराब है तो वहां पर आप ये बगावत करके ये नहीं है कि 40 एमएलए तोड़े और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, ये नहीं करना है। हमें ये करने की जरूरत है कि हम उस केस के अंदर जो भी विपक्ष वहां पर जो बैठा हुआ है, जो भी यहाँ पर पावर डायनेमिक्स के अंदर जो भी खेल चल रहा है, उस चीज के अंदर हम सोसाइटी के अंदर रहे तो रहे, लेकिन वहां पर उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसके अंदर जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उसको क्रिटिसाइज करें कि हाँ आप यहाँ पर ये चीजें गलत कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये चीज इस तरीके से हो सकती है तो बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। आप इसके थ्रू काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हिंदू कॉलेज है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि एक प्रधानमंत्री देश की संसद में बैठते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू कॉलेज के अंदर बैठते हैं। वहां पर विपक्ष भी है, वहां पर कोई ऐसे कुछ भी स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है, वहां पर पार्लियामेंट बैठती है। तो
ये सारी की सारी चीजें होती है वहां पर। तो अगर आप इसको इसके थ्रू लेकर के जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को, हाँ आपको वहां पे लगता है कि प्रॉब्लम है, पावर डायनेमिक्स वगैरह पॉजिटिव वे में लेकर के जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक वे में लेकर के जाएंगे, तो ऑब्वियसली इस चीज का बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। Yeah, obviously, that's a great answer. Now, the second question has asked by Mr. Shubham, and he's asking कि uh, uh, in future कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि सोसाइटीज को रेज करने की जरूरत है इन फ्यूचर, ऑल्सो उन सोसाइटीज पर, उन टॉपिक्स पर नई सोसाइटीज को बनने की itself जरूरत है. So what are those topics you want to suggest for future? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लाऊं तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो मिरांडा हाउस की क्वीर कलेक्टिव का है। जिस प्रकार से हम जेंडर के बाद अब सेक्सुअलिटी की तरफ भी बढ़ गए हैं, अगर हम मॉडरेटेड वे में उसके थ्रू भी देखें, क्योंकि LGBTQIA के बारे में जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में काफी कम अवेयरनेस है, लेकिन लोगों को उसके बारे में भी सिखाने की आवश्यकता है कि हाँ जो मैं हूँ, मैं हूँ, जो मैं किस प्रकार से मैं अपने आप को फील करता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए भी इनिशिएटिव ले सकते हैं हम। या इसके अलावा आप देखिए मेरे कॉलेज के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर के भी सोसाइटी बन रही है। अब हम उस चीज के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं कि कौन सी AI का दौर आ चुका है, तो AI पॉजिटिव AI किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी है, डिजिटल मीडिया किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई कई नए नए मुद्दे हैं जिसके बारे में अगर हम काम करें तो बहुत सारे हमें आइडियाज मिल सकते हैं जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। हंगर भी एक प्रॉब्लम थी जिसके लेकर काफी सारा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जिसके बारे में अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Okay, that's really nice, and that's true as well. Now, the last question from our side, from our team, that is, what is your experience with this initiative, and what you learned from it, and what you want to suggest for to further your classmates or batchmates? अगर GSTS जैसे कई सारे, जैसे सर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने ये मुद्दा जो है, ये GSTS का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने कॉलेज में भी शुरू करने वाला हूँ थ्रू DDS वर्चुअल। तो अब शायद GSTS के साथ साथ वहां पर भी ये चीजें वहां पर शुरू होगी, लेकिन उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये होगा कि हम लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे इस चीज के लिए। तो जैसे GSTS जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्रेजुएट्स को मौका मिलता है कि वो अपने पेपर्स को प्रेजेंट करे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजों को वहां पर प्रेजेंट करे जो जिसके बारे में वो जानते हैं लेकिन कोई उनको सुनना नहीं चाहता है। तो अगर ऐसी चीजें बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू होती है तो निश्चित रूप से जो लोगों के बीच में जो स्टेज फियर है या फिर टॉपिक्स को लेकर के नॉलेज तो है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितनी ज्यादा नॉलेज है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आज काफी सारी चीजें बोल करके गया हूँ, लेकिन आज अगर राकेश सर मेरे पास है, मनीष सर मेरे पास है, तो वो जरूर आएंगे मेरे को, मुझे मेरी गलतियां बताएंगे, मैं उनको नोट डाउन करूंगा ताकि मैं अगली बार कहीं पे इस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको जरूर ध्यान में रखूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, सारी की सारी थ्रू डिस्कस, डेलिब्रेशन, एजिटेशन, इन्हीं के थ्रू मिलेगी। और मुझे लगता है कि GST जैसे इनिशिएटिव जो है वो और ज्यादा बढ़ने चाहिए, अलग अलग कॉलेजेस में खुलने चाहिए, ताकि हम बहुत एक अच्छी सोसाइटीज का निर्माण कर पाए जहाँ पर हम पर्सपेक्टिव्स को कॉम्प्लीमेंट करें। Okay, so that's nice. I think discussion and guidance is something which inspired you a lot from this initiative. Well done, Mr. Hardik. Congratulations once again for this wonderful presentation you have presented today. And further, it's time to invite our guest of honor for final remarks regarding today's topic, talk and event. So I would like to invite Dr. Rakesh Kumar Rajak sir once again to give his remarks over today's topic, talk, and over this initiative. बहुत बहुत बधाई हार्दिक, आपने एंशिएंट सोसाइटी से लेकर के और मॉडर्न सोसाइटी तक सारी चीजों पे आपने दृष्टिपात किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन बातों को रखा। कहते हैं कि अच्छे कामों का समाज में अच्छा ही संदेश जाता है, होते हैं जिस देश के विद्यार्थी जागरूक, आगे वही देश जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है और इसमें जो एक स्टूडेंट का रोल है, तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि हमारी जो GSTS है एक ऐसी सोसाइटी है जो हार्दिक जैसे विद्यार्थियों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जो कई सारी सोसाइटियों में जो जुड़े हुए हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म जो है सो प्रदान करती है। दूसरी तरफ यह हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी ऐसा क्यों माना जाता है कि सोसाइटी है तो एक अच्छा ग्रुप है, सोसाइटी है तो पूरे कॉलेज में जो लाइफ है हमारी बिजी रहने वाली है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉलेज का जो लाइफ है वो हमारी पूरी एक तरीके से सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हो जाती है।
ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कॉलेजों में जो गांवों से जो बच्चे आते हैं, उनके अंदर जो है सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो नर्वस होते हैं, वो एक तरीके से लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लेकिन सोसाइटी जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है उन सबों में बेहतर करने के लिए। तो हम यह जानना चाहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सोसाइटी। तो अलग अलग तरीके से जो कॉलेजों में जो सोसाइटी बनाई गई है, म्यूजिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी और ड्रामेटिक सोसाइटी, प्लेसमेंट सेल, डिबेटिंग सोसाइटी, टैलेंट हंट शो या फिर पोएट्री सोसाइटी, कोरियोग्राफी सोसाइटी, सिनेमेटोग्राफी सोसाइटी, ये सारी जो एक हैंडीकैप्ड सोसाइटी और अलग-अलग तरीके से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, एनसीसी, एनएसएस, ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। और सोसाइटी जो है, ये चीजें मैं देखता हूँ कि यह एक प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। कॉलेज में विद्यार्थी आते हैं, कहते हैं ना कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसके साथ-साथ सेवार्थ के लिए तो जाते हैं, शिक्षार्थ के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उन विद्यार्थियों में या उस सोसाइटी में उस तरीके से पूरी नॉलेज, जो एक सोसाइटी को देने वाला जो एक नॉलेज होता है, वह चीजें नहीं मिल पाती है। लेकिन यह सोसाइटी हमको कैसे होती है कि वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। और सबसे बेहतर चीज है कि एक सोशल कम्युनिकेशन जो है हमारी, वह बेहतर बनाती है। तो इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं कॉलेजों में, उनको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाती है। उसके साथ-साथ उनको जो उनका जो टैलेंट है, वो निखारने का एक अच्छा प्लेस है, एक अच्छी सोसाइटी है। साथ ही साथ उनमें एक टीम वर्क की भावना होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है, डेवलप्ड होती है। साथ ही साथ नेम फेम कमाने का भी एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म एक सोसाइटी प्रदान प्रदान होती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, उसके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है सो सोसाइटी बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन सोसाइटी जो है केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी एक बड़े लेवल पे जो है सो एक इसका जो है, आपने जैसे एंशिएंट सोसाइटी में दिखाया, हड़प्पा सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की मानव सभ्यता की जब उत्पत्ति होती है, उसी समय से जो है सो हमारी सोसाइटी को जो है सो हम देखते हैं। चाहे वो महिलाओं को देखिए कि वह एक ग्रुप बना करके, एक सोसाइटी बना करके एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क को वह कर रही हैं, या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए सोसाइटी का एक निर्माण हो रहा है। सारे लोग आपस में जुड़ करके एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। एक विचार के लोग जो है सो एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। तो एक कहीं न कहीं जो है सो सोसाइटी जो है, आपने एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ही अच्छा दिया कि जो रोटी बैंक है, और रोटी बैंक कहीं न कहीं सोसाइटी में जो जो सबसे जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, या फिर उनके लिए काम करते-करते एक बड़े व्यापक स्तर पे जो है वह काम करना शुरू कर दिया। अभी गाँव में आप देखिए कि महिलाएँ जो है सो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, वो भी एक सोसाइटी है, और उनको किस तरीके से एक-दूसरे की मददगार बनती है। उसके साथ आप देख लीजिए कि गुल्लक बैंक भी एक सोसाइटी का एक हिस्सा बना, और एक-दूसरे का जो है सो आर्थिक मदद प्रदान कर दी गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है, यह सोसाइटी एक बड़े लेवल पे है, और इसमें जो हमारे जो स्टूडेंट हैं और इस सोसाइटी में जिस तरीके से आएँ और विश्वविद्यालय का लाभ लें, कॉलेजों का लाभ लें। कहते हैं ना कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो हम लोग भी एक सोसाइटी बनाए हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि गरीब बच्चों को, जो झुग्गी और झोपड़ियों में जो रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो भी एक सोसाइटी है, हमारी कुछ लोगों की सोसाइटी है। अभी जैसे कि ठंड के दिनों में मान लीजिए कि एज फॉर एग्जाम्पल दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजों में जो है टीचर लोगों ने एक सोसाइटी बनाया है, जिसमें गर्म कपड़े जो है एक साथ रख करके जो है गरीबों में जो है सो उसको वितरित करने का काम कर रहे हैं। एक कहीं न कहीं सोसाइटी जो है एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, और इस सोसाइटी को अगर जागरूक करने का अगर सबसे बड़ा अगर कोई काम है, तो वो है हमारा एजुकेशन। हर फील्ड में एजुकेशन। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो हम लोग जो है, एक भारतीय समाज जो है, एक सोसाइटी के माध्यम से, वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे परिवार को ही अपना एक समाज मान लेते हैं। ठीक है। और भारत को जो है सो एक परम वैभव तक पहुंचाने का, राष्ट्र निर्माण में
हम सबों की योगदान है, और इसलिए जो है सो हम लोग भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए इस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए हार्दिक आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हर क्षेत्रों पे जो है सो दृष्टिपात किया। और मनीष सर को भी बहुत बहुत बधाई कि सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे सारे मतलब कि जो बच्चे हैं उनका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना या एक कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना, ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है जो सर जो है सो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादे की अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने सोसाइटी की थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष सर।